Hi. First of all, congratulations for clicking on this video क्योंकि ये स्टील लाइक एन आर्टिस्ट का एक्सप्लेनेशन है। अब इस वीडियो के अंदर हम 10 चैप्टर है तो हर एक वीडियो आएगा जिसके अंदर हम एक एक चैप्टर कवर करेंगे और आप पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट समझोगे और उसको अपने दिमाग में डालोगे। We are having the 7th chapter. The name of the chapter is Geography is no longer our master. The reason the author says that is, till now, there is a quote by Martin Scorsese in his masterclass in which he says, if you want to be an actor, be in Hollywood or Bollywood and live near the places, because let's just say there is a director who goes to a particular mall and you are a salesman there or you are a vendor there, then the director will notice you, maybe he'll like the way you look, and then maybe he'll cast you. For example, Ashiki, the movie, the actor was casted this similar way. Mahesh Bhatt went to his mother's house, his photos were hanging and he wanted to cast him. Okay, Jackie Shroff got his break like that only. For that reason, it was considered that artists live in a place where other people can see them, where other people can communicate with them, get connected to them. But with the emergence of the internet, geography is no longer our master. We do not have to rely on geography. Reason? The reason is very simple. Author says that when he was little, he wanted to live in places where there were a lot of artists and a lot of things were happening. And he shifted from his house, his native place. He used to live in Ohio. He shifted to Texas. Okay, Austin, Texas. Now the thing is, he says that I live in Austin, Texas, but out of the 100 people I know, okay, out of all the people I know, only 10 people are from that area. 90% of the people that I share creative energy, discussion, understanding, ideas, theories, concepts, work with, do not live in Austin, Texas. 90% of the people are from internet. So he basically says that whenever you are there in a community of people you can connect with, wherever you live, no matter where, because you have the internet, you can connect to anybody and everybody on the internet. You can just open, for example, we have a WhatsApp group. You can just open Facebook, you can just open Instagram, send somebody a message, connect to them, be somebody's friend. Life becomes very, very, very easy when you want to connect with people now. And that is why you don't have to worry or you don't have to step back. You can actually just have an Instagram page and connect with people if that idea has not occurred in your mind yet. That is what basically the author is trying to say, that you do not have to worry about connecting with people. By the way, what is the name of the book? Steal Like an Artist, right? You're stealing. Who are you stealing from? You're stealing from your inspirations, but you steal more from people you connect with, people who are in your network, people who you get an understanding from, people who you talk to. If you can connect to everybody on the internet, you can steal better, right? That is a basic understanding that we are having. That is the first point. On page number 89, this is what it says, that you do not have to rely on geography anymore to do anything or to connect with anyone. Now, second point. See, what are we stealing? Either you are an artist or you're not an artist. What are you trying to steal? You are stealing ideas. And where does the inspiration come from? The inspiration comes from something that you see, something that you someone that you talk to, some discussion that you have, something that you read. And that is one reason why the author says, surround yourself with objects, books, every damn thing, whatever you can have. So even let's just say you have a room. In that room, put posters, put photos, put whatever you can. Because looking at them, thinking about them, reading something, having books, there was, I believe, some 2-3 chapters back, एक पेज के अंदर उसने बोला था कि there is nothing better than a library filled of books. और वो इसलिए है क्योंकि जब आपके पास लाइब्रेरी रहेगी ना, तो आप कोई भी बुक कभी भी उठा के पढ़ सकते हो. अगर कोई बुक रैंडमली भी आपने एक पेज निकाला, उस पेज को लिखने के लिए उस ऑथर ने कम से कम 5-6 आइडियाज लगाए होंगे. आपके लिए वो आइडियाज रेडिली अवेलेबल है जो अभी तक आपके दिमाग में नहीं थे. वो आइडियाज आपको अचानक मिल जाते हैं. सेम चीज़ है, ऑथर बोलता है कि अपने रूम को ना डेकोरेट करो, अपने आप को सराउंड करो बुक्स से, टेक्स्ट से, कोड से, जो आपको डालना है वो चलेगा. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, फ्रैंक काफका existed
अ सेंचुरी बिफोर द इंटरनेट। तो इंटरनेट जब आया 100 साल पहले काफका आके चले गए। काफका ने एक कोड बोला था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे टाइम के लिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू लीव होम, सिट एट योर डेस्क and listen. Don't listen. Just wait. Don't wait. Be still and alone. The whole world will offer itself to you. Meaning, when you sit silently and be alone, what happens is आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी, और वो अपने आप को आपको ऑफर करेंगे, तो फिर आपके दिमाग में कई आइडियाज़ आएंगे। एंड सिटिंग अलोन हैज़ बीन कंसिडर्ड दिस वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग और थेरेप्यूटिक एक्सपीरियंसेस। शाहरुख खान ने बोला है कि ही सिट्स अलोन व्हेनेवर ही हैज़ अ प्रॉब्लम। आई थिंक मैं ब्रेन ट्रेसी का कोई वीडियो देख रहा था, या ये किसी का तो था, जिसके अंदर ही वाज लाइक वट एवर प्रॉब्लम यू हैव इन लाइफ, जस्ट सिट अलोन फॉर 2-3 आवर्स, यू विल गेट द सोल्यूशन। अब वो कितना सच है कितना झूठ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन बेसिकली ही सेज दैट व्हेन यू सिट अलोन योर ब्रेन पोर्स, योर द एंटायर वर्ल्ड ओपन्स अप एंड यू गेट आइडियाज, यू गेट क्रिएटिविटी। अब अलोन रहने से आता है दूसरा पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज enjoy कैप्टिविटी। अब कैप्टिविटी एक वर्ड है जिसके अंदर अगर हॉस्टेज किसी ने आपको लेजर से, खुदा ना खास्ता कभी ना हो, लेकिन आपको किसी ने किडनैप कर लिया, तो आपको लेके जाके एक ऐसी जगह रखेगा जहाँ से आप कहीं निकल नहीं सकते, बराबर। इट मीन्स यू आर केप्ट कैप्टिव। आप एक ऐसी जगह हो जहाँ से आप एस्केप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन का सफ़र है 2 घंटे का। 2 घंटे का तक आप कहीं जा नहीं सकते उतर के। अगर आप बाइक चला रहे हो, ये कियानू रीव्स ने बोला था कि बाइक इज़ लाइक मेडिटेशन, बिकॉज वाइल यू आर राइडिंग यू कैन नॉट गो एनीवेयर, यू कैन नॉट यूज़ योर फोन, कुछ नहीं कर सकते आप, आपको सिर्फ बाइक चलाना है। और ये रिसेंटली मैंने एक्सपीरियंस किया है। व्हाट आई हैव डन इज, जब मेरा एग्ज़ाम था जो अभी थोड़े दिन पहले ख़त्म हुआ, तो मैंने क्या किया था, मैंने ऑडियो बुक्स उसकी बना लिया था, एंड आई यूज़ टू लिसन वाइल राइडिंग ऑन अ बाइक जस्ट अराउंड लाइक माई नेबरहुड। और वो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि आपका दिमाग भी खुल रहा है, आपको आइडियाज़ भी आ रहे हैं, वही टाइम पे आपका सिलेबस भी कवर हो रहा है, आप ध्यान से सुन रहे हो। ये मेरे केस में इसलिए काम करता है क्योंकि मैं सुन के ज़्यादा पढ़ता हूँ रादर देन रीडिंग, सो दैट हेल्प्स अ लॉट देयर। व्हाट द ऑथर इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू से, और ऑथर ने अपनी कहानी बताई है। जब वो छोटे बच्चे थे तो ऐसा होता था कि उनकी मम्मी उनको शॉपिंग के लिए लेके जाती थी और इनको नहीं जाना होता था उनके साथ, तो उनको बोलते थे आप मुझे कोई बुक दिला दो, मैं वहाँ पे बैठ के बुक पढ़ लूँगा। अब वो 1-2 घंटा जितना भी टाइम वो शॉपिंग करते थे, ये बंदा बैठ के बुक पढ़ता था, और इसने ऐसी कई किताबें बैठे बैठे ख़त्म कर दी। अभी भी वो एक काम करते हैं जहाँ पे उन्हें जब ऑफिस जाना होता है तो अपनी गाड़ी निकाल के भी जा सकते हैं और जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन जानबूझ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे और एक बुक लेके बैठ जाएंगे। 20 मिनट लेट पहुँचेंगे, लेकिन एटलीस्ट उतने टाइम में उनकी पढ़ाई हो जाती है। तो जब आप अकेले रहते हो, कई बार क्रिएटिविटी वहाँ से भी बहुत ज़्यादा स्पार्क होती है, बहुत ज़्यादा आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। सो द सेकेंड पॉइंट इज एन्जॉय कैप्टिविटी। बी अलोन इन अ सिचुएशन वेर यू कैन नॉट एस्केप, एज सिंपल एज दैट। अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि लीव होम, अपने घर को छोड़ दो। अभी ज़रा ध्यान देना, पहले इस बंदे ने बोला कि जियोग्राफी अब हमारा मास्टर नहीं है, तो आप अपने घर में अकेले रह के भी कुछ कर सकते हो। वो बोलने का रीज़न ये था कि कई लोगों के पास में ऑप्शन नहीं होता, या तो उनकी फैमिली की सिचुएशन ऐसी है कि वो बाहर नहीं जा सकते, घर छोड़ के नहीं जा सकते, कहीं पे घूमने नहीं जा सकते, नहीं तो घर में लेट्स जैसे पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, उनका ख्याल कौन रखेगा, या फॉर एनी रीज़न लेट्स जैसे डिसेबिलिटी है या पैसे का प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, वो बंदा ट्रैवल नहीं कर सकता, तो वो जाके किसी आर्टिस्ट को न्यूयॉर्क में नहीं मिल सकता। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो कुछ ही नहीं कर सकता? नहीं। इसलिए उसने बोला कि ज्योग्राफी अब आपका मास्टर नहीं है, आप दोस्त बना सकते हो। दूसरा, क्रिएटिव काम करने के लिए किसी वाटरफॉल के नज़दीक जाके ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठ के भी बना सकते हो। ये था सेकंड पॉइंट। लेकिन इससे ऑथर का मतलब ये नहीं है कि ट्रैवल मत करो। आपको ज़िंदगी में एक बार या मल्टीपल टाइम्स अपने घर से निकलना चाहिए। क्यों? जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो ना, आप अपने आप को डिस्कम्फर्ट में फेंकते हो। जब आप अपने आप को डिस्कम्फर्ट में फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से ही क्रिएटिविटी आती है। डिस्टेंस और इंसाइट का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। जितना ज़्यादा आपके घर से आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपके इंसाइट्स और आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे से फायर करेंगे। इमेजिन करो कि तुम अभी जाके मे भी तुम्हारे यहाँ पे कोई भी एक सुपरमार्केट होगा या मॉल होगा, उसके बाहर खड़े हो जाते हो, तुम्हें कैसे फील होता है? अब इमेजिन करो कि तुम किसी और कंट्री में हो, या किसी जो भी तुमने अभी तक ट्रैवल किया है, किसी और सिटी में हो,
और वहाँ के मॉल के बाहर खड़े रहते हो अकेले, अकेले मतलब अकेले गए हो आप, फीलिंग दोनों की सेम नहीं रहेगी, बहुत अकेला फील होता है या बहुत अलग फील होता है। ये वही फीलिंग है जो हमें कभी कभी हाईवे पे आती है, जब हाईवे पे हम गाड़ी से थोड़ा उतरते हैं और एक अलग फील होता है। अब वही फीलिंग ऐसा नहीं है कि वो वेदर अलग है इसलिए वो फीलिंग आ रही है, वो फीलिंग वेदर की वजह से भी आ रही है, लेकिन पर्टिकुलरली इसलिए आ रही है क्योंकि आप अपने घर से दूर हो। नाउ यू आर ऑन योर ओन, यू बिहेव डिफरेंटली, you create art differently, you work, you think differently, and that is when you think differently, you do different things. Difference और distance, ये दोनों मिलके क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा पावर देते हैं। इसने कोड लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ। Distance and difference are the secret tonic of creativity. When we get home, home is still the same, but something in our mind has changed, and that changes every single thing. So meaning you have to travel if you can. अभी जब हम यहाँ पे आते हैं तो कहाँ जाना चाहिए रहने के लिए? अब जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ऑथर जैसे ब्लॉग में लिखते हैं ना चीज़ें, वैसे ही ब्लॉग के हिसाब से ऑथर बोल रहा था। जैसे नहीं हम ब्लैबर करते कि अरे आप पानी पूरी भी ट्राई कर सकते हो, आप फॉर एग्जाम्पल बटर चिकन भी ट्राई कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। तो वैसे ऑथर कुछ एडवाइसेस दे रहा है, शायद ये एडवाइसेस तुम्हारे लिए 100% एक्सेप्टेबल हो ना हो, सुन लो, सुनने में क्या जाता है। तो ऑथर ने 4 चीज़ें बोला है। सबसे पहले बैड वेदर, अगर वेदर ख़राब हो तो क्रिएटिविटी ज़्यादा अच्छे से आती है, क्योंकि अगर वेदर ख़राब है तो आप अपने घर में बैठेंगे, घर में बैठेंगे तो फिर कैप्टिव हो जाएंगे। तो पहले तो आप कहीं दूर दराज की जगह पे हो, उधर कैप्टिव बैठे हो और उधर कुछ करने के लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जाके मम्मी के पास बैठ गए, क्योंकि वहाँ पे कोई है नहीं, ऊपर से आप अकेले हो, उससे क्रिएटिविटी ज़्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि आपके पास और कुछ करने के लिए नहीं है। And that will put you into an amazing situation also. From photography, I can say. Photography में quote है कि bad weather make the most amazing photos, which is 100% true. Reason? Bad जब weather होता है तो वो बहुत अलग चीज़ें दिखाता है आपको। क्लाउड्स अलग होंगे, जो बिजलियाँ गिरेंगी वो अलग तरीके से गिरेंगी, जो आसमान में रंग होंगे वो अलग होंगे। एंड मे बी बैड वेदर बिकॉज इट स्पार्क्स डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स इन यू। अभी जिस सुकून से हम लोग बैठ के लेक्चर्स सुन रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, आप बैठे हो, अगर बाहर ठंडर आ जाए और आपका वाईफाई अचानक से बंद हो जाए, फीलिंग सेम नहीं होगी। एंड वो कुछ और थिंकिंग स्पार्क करता है, विच इज़ अ लॉट ऑफ न्यू थिंकिंग्स एंड न्यू आइडियाज़, एंड उनको ज्वाइन करना इज़ नथिंग बट क्रिएटिविटी। तो यहाँ से कनेक्ट करके bad weather is good if you're traveling, okay, if you're living somewhere. Second, live around interesting people. This cannot be more true. When you live with interesting people, let's just say you have a friend who is just another person like you, and you have a friend who is an artist. जब आप दोनों से बात करोगे ना, जब आप इसकी कहानियाँ सुनोगे, क्या किया था, फॉर एग्जाम्पल पढ़ रहा था, ऑफिस गया था, सब्जी लाने गया था, जब आप इससे बात करोगे हु एज एन आर्टिस्ट, मैं गैलरी में गया था, वहाँ पे ये मिला, फिर उससे मैंने ये बात की, फिर किसी ने मुझे कुछ अलग नई चीज़ बताई, कॉन्वर्जेशन बहुत डिफरेंट होता है, स्टोरीज़ बहुत डिफरेंट होती है। उन स्टोरीज़ को जब हम चुराते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस बदल जाता है, आपको नए आइडियाज़ आ जाते हैं। उसके बाद आता है फूड। द फूड शुड बी गुड। यू हैव टू फाइंड अ प्लेस वेयर इट दैट फीड्स यू क्रिएटिवली, सोशली, स्पिरिचुअली एंड लिटरली। मैंने एक चीज़ देखा है, खाते टाइम ना कोई भी सैड नहीं होता, खाते टाइम इंसान हमेशा मस्ती में होता है। सो इफ़ यू आर इन अ प्लेस वेयर पीपल आर एंजॉइंग लाइफ, इफ़ द फूड इज़ अमेजिंग, इफ़ द वाइब इज़ अमेजिंग, इफ़ द वेदर इज़ गुड, दैट मेक्स यू हैप्पी, दैट फिल्स योर सोल। और जब आप अंदर से खुश होते हो ना, फिर कोई काम करने का आपका दिल होता है, कोई चीज़ बनाने का आपका दिल होता है, फिर आपको मज़ा आता है और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। अब एक लास्ट पैराग्राफ बचा है जिसके अंदर ऑथर बोलता है कि इवन इफ़ यू सेट अप योर न्यू होम, यू नीड टू लीव इट नाउ एंड देन। अगर आपने नया घर सेट किए हो और आपको वहाँ से भी कहीं जाना आना पड़ रहा है, कोई इशू नहीं है। वाई? क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है। आपके दोस्त, आपके कनेक्शंस कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि सारी चीज़ें कनेक्ट। तो आपको अगर किसी दोस्त की ज़रूरत पड़ती है, एक बहुत पुरानी एड आई थी, आई डोंट नो किसकी थी वो, कौन से इंटरनेट प्रोवाइडर की थी, बट बेसिकली एक लड़की रहती है जो यूके जाती है रहने के लिए, और वो वहाँ का जो उसका डिनर का टाइम होता है उस पर कॉल करती है। यहाँ पे लोग 2 बजे फ़ोन उठाते हैं और वो पूछती है कि चटनी में मसाला कैसे डालता है। एंड वो टेलीकॉम की ऐड थी कि वी कीप यू कनेक्टेड एंड एवरीथिंग, बट दैट इज़ सो ट्रू। अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी परेशानी है, कुछ भी क्रिएटिवली समझ में नहीं आ रहा, इंटरनेट तो है अपने पास, मीनिंग यू कैन गो एंड ट्रैवल एंड डू वट एवर यू विश। क्रिएटिवली यू कैन एन्जॉय एंड एक्सप्लोर एंड क्रिएट स्टफ।
That is what the author was trying to say in chapter 7. आपको पता है आपने भी क्या किया? आपने एक पूरा चैप्टर देखा है ऑफ अ बुक स्टे लाइक एन आर्टिस्ट, जिसके अंदर की इनसाइड काफ़ी वैल्यूएबल है. सो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड यू शुड जस्ट थिंक दैट आपने इस बुक को एक सिलेबस की तरह पढ़ा है. एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय.